السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پنواکل کے سول اسپتال میں آپریشن تھیٹرز کو فعال کر دیا گیا۔ پنواکل سول اسپتال میں آپریشن تھیٹرز کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پنواکل کے عوام سہولیات سے محروم تھے، جس پر شہریوں نے عدالت کا رخ کیا۔ شہریوں کے اس عمل پر محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام ایکشن میں آ گئے۔ انسان وہی جو دوسروں کے کام آئے۔ پارا چنار کا سرتاج علی معذوری کے باوجود علاقے کے یتیموں اور غریبوں کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے۔ رپورٹ کریں گے جاوید بنگش۔ ہمارے ہاں اکثر جسمانی مزدور معاشرے میں بوجھ سمجھے جاتے ہیں، مگر پارا چنار کے سرتاج علی پیدائشی جسمانی مزدور ہونے کے ساتھ ایک سماجی کارکن ہے جو علاقے کے یتیموں اور مزدوروں کے لیے دن رات مصروف عمل رہتا ہے۔ سرتاج علی صاحب ثروت افراد سے چندے جمع کر کے کبھی غریبوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں، کبھی یتیموں کے لیے سردیوں سے بچنے کے لیے گرم ملبوسات کا بندوبست کرتے ہیں۔ جتنے بھی ماہر زراعت ہیں، ہم اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئے ہم سے مل کے اس طرح چھوٹے بچے ہمارے علاقے میں مزدور بچے بیوائی ہیں، غریب لوگ ہیں جو بیچارے بہت مشکل زندگی گزار رہی ہے، تو آئے ہمارے ساتھ مل کے اس طرح ہمارے علاقے کی میں خدمت کریں۔ سرتاج علی جیسے جسمانی مزدور افراد ہمارے معاشرے میں صحت مند لوگوں کے لیے بھی ایک اعلیٰ مثال بنا ہوا ہے۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ جہلم میں دیوار احساس پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا۔ دیکھیے بابر حسین کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر جہلم نعمان حفیظ نے سپورٹس کمپلیکس ہال میں دیوار احساس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ دیوار احساس پروگرام محکمہ سوشل ویلفیئر اور دیگر سماجی تنظیموں کو تعاون سے قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد غریب افراد کو سردیوں کے لیے گرم کپڑے فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نے کہا کہ دیوار احساس پروگرام کا مقصد غریب اور مستحق افراد کو گرم کپڑے کمبل مہیا کر کے انہیں سردی سے بچانا ہے، تاکہ ان کو بنیادی سہولیات میسر آ سکیں۔ یہاں پہ آ کے جہلم کے شہری زندہ شہری ہیں، انہیں احساس ہے اپنے ان بہن بھائیوں کا جنہیں اس سرد موسم میں تحفظ کی ضرورت ہے، تو یہی ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، ان کا احساس کریں اور ان کی انسانی بنیاد پہ مدد کرنے کی کوشش۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں وہ مفت میں اپنی پسند کے گرم کپڑے دیوار احساس سے لے جا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام دیوار احساس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اس حوالے سے مختلف سماجی تنظیموں اور مہیا حضرات کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف، سچ نیوز، جہلم۔ گورنر پنجاب نے سنگلا حل کا دورہ کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ اور ریلوے انڈر پاس اور دیگر مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔ ندیم اختر بٹ کی رپورٹ۔ سانگلا ہل گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی سانگلا ہل آمد پر چیئرمین بیت المال پنجاب ملک محمد اعظم، ایم پی اے میاں محمد عاطف، رہنما پی ٹی آئی ارشد سائی اور پی ٹی آئی کے کارکنان نے پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں چودھری محمد سرور گورنر پنجاب نے سانگلا ہل شہین چوک میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے وژن کے مطابق لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا، جس میں چودھری محمد سرور نے سانگلا ہل کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانگلا ہل میں پینے کے صاف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ، سڑکوں کی خستہ حالی، تعلیمی اداروں کی توسیع، مرمت، ریلوے انڈر پاس اور دیگر مسائل کو فوری حل کیا جائے گا اور سانگلا ہل کی عوام کو طبی سہولیات مزید بہتر مہیا کی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، سچ نیوز، سانگلا ہل۔ لور دیر کے قبیلہ اتمان خیل کی سالانہ یوم تاسیس کی تیاریوں کے حوالے سے اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ۔ لور دیر کے قبیلہ عثمان خیل کے عمائدین نے کہا کہ ان کے قبیلہ پرامن اور محب الوطن ہے، اگر ضرورت پڑے تو ان کے قبیلے کے علاقوں افراد ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے پاک فوج کی شانہ بشانہ ہوگی۔ ایف سی کی برتی میں قبیلہ عثمان خیل کا مخصوص کوٹا بحال کیا جائے۔ قبیلہ عثمان خیل کی یوم تاسیس کے موقع پر تیمرگرہ میں بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا گزشتہ سال کورونا وبا کی وجہ سے ان کے قبیلہ کی یوم تاسیس نہ منایا جا سکا۔ اس سال عید الفطر کے بعد مئی میں یوم تاسیس پر بڑی اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے قبیلہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لور دیر۔ عمرکوٹ میں صوبائی وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے مختلف سکولز کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سندھ نے اساتذہ کرام کو تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دورے کا مقصد تعلیم کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانا اور مختلف سکولز اور کالجز کا دورہ کر کے تعلیم کے معیار کا جائزہ لیتا رہوں گا۔ پاکستان کے ماہ راز اداکار رشید ناز 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ میری توہین پہ خوش ہونے والا یہ اینجیو کنجو کراؤڈ ہے، ان کے
پاکستان کی ٹی وی اور فلمی صنعت کا ایک اور ستارہ ڈوب گیا، اداکاری کا ایک اور باب بند ہوا۔ متعدد فلموں ڈراموں سے شائقین کے دلوں میں جگہ بنانے والے رشید ناز چل بسے۔ رشید ناز نے 1971 میں پشتو ڈرامے میں بطور اداکار اپنے ٹیلی ویژن کیریئر کا آغاز کیا اور متعدد پشتو، ہندکو اور اردو زبان کے ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ میں بڑے سے سخت ناراض ہوں، دیکھو نا 6 مہینے بعد میں اپنے ملک واپس آیا، نہ تسی آئے ہو نہ ماما، آئی فیل اٹ۔ اچھے پتر ناراض نہیں ہوندے، بڑے تھے کچھ صنعتکار ایسے اکٹھے ہوئے ہیں، بہت اہم میٹنگ ہے، تے میرا ہونا بڑا ضروری ہے۔ رشید ناز کا پہلا اردو ڈرامہ ایک تھا گاؤں جو 1973 میں نشر کیا گیا تھا، جبکہ ان کا پہلا مقبول ڈرامہ ناموس تھا۔ رشید ناز کی پہلی اردو فلم ڈکیت تھی۔ رشید ناز نے فلم خدا کے لیے میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ رشید ناز نے 1988 میں اپنی پہلی پشتو فلم زما جنگ میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ رشید ناز نے خدا زمین سے گیا نہیں ہے، انکار، انوکھی، اپنے ہوئے پرائے، غلام، گردش، دوسرا آسمان، ناموس، پتھر، آن سمیت دیگر ڈراموں میں اپنی جاندار اداکاری سے شائقین کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ نہیں لگتا ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کدھر سے آیا ہے؟ بولوں گا تو کراچی بولوں گا نا۔ کچا کھو میں سرسوں کا ساگ، مکے کی روٹی، لسی اور مکھن پنجاب کی ثقافت کی پہچان ہے۔ دیکھیے عمر حیات سہو کی رپورٹ۔ پنجاب کے کسی گاؤں بھی جائیں تو سبز لباس اوڑھے یہ سبزی کھانے کو ضرور ملے گی۔ اس کی پہچان ساگ کے نام سے ہوتی ہے۔ اس کی گندلوں کو کاٹنے کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر لذت لینی ہو تو پکائی بھی مٹی کے برتن میں ہلکی آنچ پر ہو، ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی، مکھن اور چاٹی کی لسی ہو تو دسترخوان سجتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ساگ میں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور فولاد شامل ہیں جو انہیں متوازن غذا بناتے ہیں۔ مکئی کی روٹی، چاٹی کی لسی پنجاب کی لازوال مہمانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ عمر حیات سہو، سچ نیوز، کچا۔ کورونا کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 9% کے قریب پہنچ گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,809 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 2,41,86,508 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 29,019 جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 13,28,487 ہو گئی۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,884 ہے جبکہ کورونا سے متاثر 781 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 12,63,791 ہو گئی۔ مردان میں پہلی بار خواتین کے والی بال مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ منظور حسین کی رپورٹ۔ مردان بنا کھیلوں کا میدان۔ ریجنل سپورٹس کی جانب سے انٹر کلب بنت ہوا والی بال چیمپئن شپ کے مقابلوں کا اہتمام ہوا تو خواتین کھلاڑیوں نے ایسی پرجوش انداز میں اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ مقابلوں میں ضلع بھر سے کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلبات پر مشتمل 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ عبدالولی خان یونیورسٹی نے شیخ ملتون ڈگری کالج کو ہرا کر بنت ہوا والی بال چیمپئن شپ اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی طالبات پرعزم ہے اور عملی میدان میں ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہے۔ یہ بنت ہوا ٹورنامنٹ جو انہوں نے آرگنائز کیا ہے تو یہ فیمیلز کے لیے بہت اچھے موقع ہے اس میں کہ وہ جتنا ہو سکے اپنا ٹیلنٹ دکھائے، پریکٹس کرے۔ مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے جبکہ کھیل کے اختتام پر خواتین کھلاڑیوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ دھند سے تباہ ہو گئی۔ دھند اور تیز رفتاری ٹریفک حادثات کا سبب بن گئی۔ مختلف حادثات میں 4 مسافر جان سے گئے۔ پنجاب بھر میں دھند کے ڈیرے، منکیرا، سرائے مہاجر اور گوروالا میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ 5 میٹر رہ گئی۔ نورپور تھل، خان بیلا اور کندیا میں دھند کے باعث حد نگاہ 10 میٹر رہ گئی۔ جیلم اور پیر محل میں دھند کے بادل چھا گئے، حد نگاہ 0 ہو گئی۔ ڈسکا، لیا اور سلطان پور میں دھند کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ دھند اور تیز رفتاری کے سبب حادثات معمول ہی بن گئے۔ گجرانوالہ میں جنرل بس سٹینڈ کے قریب تیز رفتار ٹرک اور رکشے میں تصادم ہو گیا۔ خوفناک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ کوٹ ادو میں دھند کے سبب حادثہ ایک جان لے گیا۔ ڈھرکی میں ٹریکٹر حادثے میں ایک نوجوان جہاں بحق ہو گیا۔ منکیرا میں دھند کے سبب ٹرالر اور رکشے میں تصادم سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حافظ آباد میں موٹر وے M2 پر خوفناک حادثہ ہوا۔ متعدد کاریں مزدے سے ٹکرانے سے 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔
सियालकोट की तहसील सिमरियाल में मजदूरी मांगना मैकेनिक को महंगा पड़ गया। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मैकेनिक को जख्मी कर दिया। मुसल्लह अफराद ने 50 रुपए उधार न करने पर मोटरसाइकिल मैकेनिक को फारिग करके शदीद जख्मी कर दिया। मुसल्लह अफराद अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी मैकेनिक को तशवीशनाक हालत में सियालकोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमे जंगलात की गफलत नारंग मंडी के सरहदी गांव में नहर किनारे लगे कीमती तरीन दरख्त चोरी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के बिलियन ट्री मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी गईं। नारंग मंडी के सरहदी गांव मेहतसुजा में नहर किनारे लगे दरख्त रात के अंधेरे में काट दिए गए। हमले की मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए की लकड़ी चोरी हो गई। चौक सरवर शहीद में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद के बेशतर इलाकों में बिजली का निजाम धर्म भरम है। बिजली के पोल्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बेशतर इलाकों में बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बार करंट लगने के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लकड़ी की मदद से तारों को ऊंचा किया हुआ है। बिजली के पोल है, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से जो तारें हैं जमीन पे पड़ी हैं, जिसकी वजह से हमें और हमारे बच्चों को काफी दफा करंट लगा है। इसके अलावा जानवर भी जो है हमारे, उनके नुकसान काफी दफा है इन तारों की वजह से जो जमीन पे पड़ी हुई हैं। हमारा आला हुकाम से ये मुतालबा है कि जो तारें हैं इनको पोल लगा कर क्या है ऊंचा किया जाए। शहरियों ने मुतअद्दिद बार मैप्को अमला को तहरीरी दरख्वास्तें दी, मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। भक्कर की सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। एक तरफ सड़कें टूट फूट का शिकार तो दूसरी तरफ सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। नासिर बलोच की रिपोर्ट। अरबों रुपए का फंड मिलने के बावजूद भी भक्कर शहर के हालात में कोई बेहतरी दिखाई नहीं देती। वहीं टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह सीवरेज का पानी, सड़कों पर ट्रैफिक फंसना मामूल बन चुका है। कहीं मिट्टी और धूल के बादल और कहीं सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। दरिया खान रोड, गडोला रोड, पेहर रोड, कोटला जाम रोड और जंग रोड इस कदर टूट फूट का शिकार हैं कि इन पर सफर करने वाले लोग ज्यादातर मोरों के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और सड़क से उड़ने वाली धूल के बायस शहरियों में सांस की बीमारियां पैदा हो रही है। आए दिन गुजरना होता है और ये इतना गंदा रोड है कि इसमें जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। सारा रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर मेन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इसी रोड पे हैं, जो कि स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं। हमारे लिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा के लिए यानी गुजरना मुहाल होता है। सिटीजन पोर्टल पर भी कंप्लेन दी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर में जो है रोड जो है ना टूट फूट का बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। खास करके कोटला जाम रोड हो गया, से जाके कहते हैं कि गटरों के ढक्कन लगाएं, तो कहते हैं हमारे पास अभी तक गटरों के ढक्कन आया नहीं, आप जो है ना फिर को जो है दरख्वास्त दे ये करें। शहर को दूसरे शहरों से मिलाने वाली तमाम सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकिरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच न्यूज, भक्कर। नारंग मंडी के वस्त में गुजरने वाला रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मुअज्जम नवाज। नारंग मंडी शहर के वस्त से गुजरने वाला यूनुस रोड हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। नारंग मंडी और इर्द गिर्द के 140 के करीब दहात है, जिसके बहुत से शहरी इसी रोड पर इंसार करके नारंग मंडी शहर आते हैं। रोड की खस्ता हाली और तबाह हाली की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि काफ़ी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। गालबन नारंग सिटी को 140 के करीब गाँव लगते हैं, जो कि यहाँ से आने वाले लोग जहाँ से गुजर कर सिटी एरिया में खरीदो फरोख्त के लिए इंटर होते हैं। तो हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी तामीर करवाई जाए। ये रोड न सिर्फ आम शहरियों बल्कि स्कूल और कॉलेज में जाने वाले सैकड़ों तलबा और तालबात के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अरसा दराज से इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से जगह जगह गहरे खड्डे पड़ चुके हैं, जो शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बायस हैं। शहरियों ने कहा कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मुअज्जम नवाज, सच न्यूज, नारंग मंडी। सिनामा के इलाका कस्बा गुजरात में घर में आग लग गई। मां और बेटे समेत 3 अफराद झुलस गए। सिनामा के इलाका कस्बा गुजरात में आग लग जाने से मां और बेटा झुलस कर जख्मी हो गए। घर का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में तजावजात के खिलाफ इंतजामिया का सर्च ऑपरेशन जारी है। गाड़ियों और रिक्शों के खड़े होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पूरी होने के बाद म्यूनसिपल कमेटी चौकाज़म की नई एडमिनिस्ट्रेटर शीजा रहमान चार्ज संभालते ही तजावजात के खात्मे और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गयी। शहरियों और तलबा की शिकायत पर एडमिनिस्ट्रेटर चौकाज़म की जानिब से तजावजात को खुद ब खुद खत्म करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 2 दिन गुजर जाने के बाद म्यूनसिपल कमेटी ने पुलिस की मदद से तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान रेडी बानों के लिए 15 फीट जगह छोड़ते हुए सड़क किनारे मौजूद पत्थरों और ताजरों की जानिब से रखे गए सामान को पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी अमला ने हटा दिया, जबकि दूसरी जानिब मीनार चौक पर गाड़ियों और रक्षों को खड़ा करने पर पाबंदी लगा दी ताकि ट्रैफिक की रवानी में किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। साथ ही पैदल चलने वाले शहरियों और चौकाज़म से गुजरने वाले तलबा की परेशानियों को कम करते हुए हादसात के इम्कानात को खत्म किया जा सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया।
जेहलम के एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तजावजात खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। जेहलम में तजावजात माफिया के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। 9 तैनात एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तजावजात को खत्म करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। टीम ने ऑपरेशन करते हुए सामान कब्जे में ले लिया और जुर्माने भी आयद किए गए। चिश्तिया की सड़कों के अतराफ और मसरूफ तरीन बाजारों में तजावजात की भरमार है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अफजल। चिश्तिया शहर की हाईवे रोड शुगर मिल रोड पर कायम मोटरसाइकिल रिक्शा स्टैंड की इजारादारी कायम होने के बायस दुकानदारों समेत पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिश्तिया की मुख्तलिफ सियासी, समाजी, कारोबारी तंजीमों ने कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से मुतालबा किया है। मुतालबा है कि यहाँ रिक्शे वाले आगे खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो एक दफ़ा इनको कहते हैं, चलान भी करते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते। बड़े परेशान है ने, पूरा बाजार परेशान है। 5-5 6-6 रिक्शे खड़े होंगे ने, एक्सीडेंट होंगे ने, फिर इन्हों कहो दे कोई बदतमीजी करते ने। चिश्तिया में नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा मैन राणा मोहम्मद अबूजर के साथ राणा इमरान अफजल, सच न्यूज चिश्तिया। नारोवाल के मरकजी चौक का सबरी सिस्टम नाकारा हो गया, सड़कें पानी से भर गईं, आवाम का पैदल चलना बहाल हो गया। सगीर हुसैन की रिपोर्ट। मरकजी चौक सराफा अलमारूफ हुसैनी चौक से हजारों की तादाद में अवाम खरीदारी के लिए और तलबा व तालबात समेत नमाजी हजारों अफराद की वाहद गुजरगाह गंदे पानी से सभी भाई जेड़े हैं ताजर हजरात पानी गंदे पानी की वजह तो बहुत परेशान है। ना कोई बारिश हुई है, ना कोई मसा के कोई सैलाब आया वे, नालियां दा गंदा पानी है जिदी वजह ना कोई कस्टमर आंदा ना कोई गाहक आंदा वे। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और डीसी नारोवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ ये सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज, नारोवाल। डोडियाल में निकासी आब का निजाम न होने के बाद शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली। डोडियाल के मोहल्ला यूसीआई स्कूल की गली सीवरेज का मुनासिब सिस्टम न होने की वजह से अहले मोहल्ला परेशान है। बारिश का पानी हो या सीवरेज का घरों में घुस जाता है और गली तालाब का मंजर पेश करने लगती है। अहले मोहल्ला के मुताबिक ज्यादा कोशिश कर चुके हैं इस पानी के बारे में। साड़ी गली पानी बंद है, सीवरेज का भी और बारिश का भी, कोई इसका खातर खा इंतजाम। एक साल तो असी बड़े परेशान हैं। मुतअद्दिद बार हुकाम की तवज्जो के लिए अहले मोहल्ला ने तहरीरी तौर पर भी आगाह किया, मगर सूरत हाल यूं की तूं है। गली में गंदा पानी जमा होने से डेंगू और दूसरी बीमारियां फैलने का खदशा है। मुंतखब नुमाइंदे मुतलका सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर गली की पुख्तगी और सीवरेज का मुनासिब इंतजाम करके शहरियों को दरपेश मसले से निजात दिलवा सकते हैं। कैमरा मैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज। उच्च शरीफ में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए, शहरी घरों में महदूद होकर रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। उच्च शरीफ में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्तों की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला। आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने के बाद शहरी बच्चे, खवातीन समेत बुजुर्ग खौफ में मुब्तला रहने लगे। आवारा कुत्ते जो कि गलियों और चौराहों में चहल पहल करते नजर आते हैं, जिससे स्कूल में जाने वाले तुलबा और खेलते खुलते बच्चे समेत राहगीर खौफज़दा रहने लगे। आए रोज इंसानों और जानवरों को काट लेते हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इनको तलफ किया जाए। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर आवारा कुत्तों ने डेरे जमवा लिए, जिसके बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ाई। शाहकोट और गुजरात में पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। पुलिस ने डकैती के मुकदमे में मतलूब मुजरिम को धर लिया। गुजरात पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ शाहकोट की हिदायत पर इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नारंग मंडी में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। उधर शहरी बैंक से पैसे लेकर निकले, उधर डाकुओं ने घेर लिया। थाना नारंग में डकैती की वारदातें नॉन स्टॉप जारी हैं। मोटरसाइकिल सवार ताजर से 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। नारंग मंडी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लियाकतपुर, मिंचनाबाद और रहीम यार खान में खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। खाद की अदम दस्तियाबी पर किसान आपस में लड़ पड़े। खाद की अदम दस्तियाबी के खिलाफ लियाकतपुर के किसानों ने खान बेला कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह ब्लॉक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। काश्तकारों का कहना था कि खाद की किल्लत की वजह से फसलें मुतासर हो रही हैं। चौबारा में खाद के बहरान और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में इजाफे ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी। किसानों ने हुकूमत से ज़राअत के लिए खुसूसी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया। अता मोहम्मद नाइज की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात, खाद के बहरान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा के बायस किसान शदीद मायूसी और परेशानी का शिकार हो गए। किसानों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़राअत की बेहतरी और रिलीफ की फराहमी के लिए तवज्जो न दी तो किसान गंदम और दीगर फसलों की काश्त छोड़ देंगे। अगे हुण ताईं असां जनाब खाद दे पिछू लाइनां धक्के खा के ना को खाद लभी जी। कणकां सारियां दी हालात देखो, कणकां बैग
कोई खाद महंगी मट्टी हूँ 2500 तो गट्टू गिद्दी खड़े हैं हूँ डीजल दी पोजीशन है ना साकू पंप वाले डीजल देने ते ना एजेंसी वाले डीजल दे रहे हैं सानू बड़ा मेहरबानी को रेट घाट सीने तो ठीक है नहीं तो कणका जरिए बिजाई अगले साल हो सी का ना बर वक्त किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए खसूसी इक़दाम न किए तो ज़राअत का शुबा मजीद ज़बूहाली का शिकार होगा, जिससे मुल्क में खुराक का बदतरीन बहरान पैदा हो सकता है। तमाम नए सच न्यूज़ जोबराव। हाफिजाबाद में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मेहर अबू बकर यूनिस की रिपोर्ट। आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी भी आपे से बाहर हो गए। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 149 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। सुबह पेट्रोल बच जाता, बच्चे ने बड़े औखे पाले ने, अगे बच्चे अगे काम करेंगे, पेट्रोल ही वधी जाना। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ मजदूरी करने हैं, टैक्सी चलाने हैं, लेकिन सानू ये वारा नहीं खाता। दूसरी जानब महंगाई के नाम पर मसनूई महंगाई भी की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मुकाम पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों पर फी लीटर पेट्रोल 160 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला को वापस लिया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन टीम के हमरा मेहर अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। जैकबाबाद की आवाम पर मिनी बजट के साथ पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। महंगाई के बायस बेरोजगारी बढ़ रही है। दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के इम्कानात बढ़ गए, जो गरीबों के साथ जुल्म और ज्यादती के मुतरादिफ है। जुल्म है, एक बेरोजगारी है, कोरोना है, महंगाई उरूज पर है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आवाम बेचारी पिस रही है और ये पिसती रहेगी, भले कुछ भी रहे, रोते रहे, चिढ़ते रहे, कुछ भी करे, पर होगा वही है जो अरबाब अख्तियार चाहेंगे। हम आवाम तो अब आदी हो गए इन लोगों के जुल्म और सितम सहने के। पेट्रोल महंगा होने के बाद अशिया खुर्दुनोश समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी मजीद इजाफा होगा। कैमरा मैन अयास उमरों के साथ दोस्त लशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। कदकोट में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। महंगाई के बायस आम लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट रोने लगे, जबकि महंगाई के बायस आम लोगों की जिंदगी मफलूज बन कर रह गया। पेट्रोल महंगा था, फिर कल से बाद फिर महंगा हो गया है। हम सारा दिन रश्का चलाता है, हमारे को सारे दिन में 500 या 600 कमाते। पेट्रोल के कीमत आसमान तक पहुंच गए, जिसके बायस महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, जिससे मियां चन्नू के शहरी सरापा एहतजाज हैं। जावेद चांडिया की रिपोर्ट। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए पेट्रोल मसनूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। आगे बहुत महंगाई है, एक तो पेट्रोल महंगा कर दिता, आगे 60 रुपया लीटर पौंदे सी, हुण 150 आ गया। किधर जाइए असी? पेट्रोल अभी मुझे पता चला कि महंगा हो गया है, तो हुकूमत आए दिन बढ़ाती रहती है। पेट्रोल मसनूआत की कीमत बढ़ जाने से जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजों की कीमत में खातरखा इजाफा हो जाता है, जिससे मजदूर और दिहाड़ीदार तबका खासा परेशान नजर आने लगता है। कैमरामैन बिलाल हुसैन के साथ जवेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मियां चन्नू। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।